starts working. Yeah, this is prompt स्ट्रक्चर. जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने पहला आउटपुट देखा है, सो इस आउटपुट में हमें आंसर मिला है. सो जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है कि माई कोड इज नॉट वर्किंग, कैन यू फिक्स इट. और यहाँ पे हमने कोड लिखा है और यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा है एंड जस्ट वी गॉट एन आउटपुट. ओके, सो आउटपुट इज okay, it is not much effective if it comparative with the another one. If you see over here, okay, we got a complete structure with explanation, like we can say the better than the previous one. So what it is like, दोनों prompt में क्यों अलग-अलग हमें output आ रहा है. So यही आज का वीडियो on the prompts, like good prompts and the bad prompts. So welcome back to my channel. My name is Pradeep and today we are going to start a new series on the LangChain and जहाँ पे हम day wise एक एक टॉपिक कवर करेंगे of the LangChain. So आज का टॉपिक है on the prompts and मैंने यहाँ पे दो prompts लिखे थे. जो फर्स्ट prompt था, एक मैंने नाम दिया था एक bad prompt और सेकंड जो लिखा था मैंने लिया था उसको एक good prompt. So दोनों में क्या डिफरेंस है? If you get one point that like regarding the prompts, so prompts are basically we can say a communication between we and the LLM model. So अभी के टाइम पे जो मेरा LLM मॉडल है वो है हमारा ग्रॉक. ठीक है. सो मैंने क्या किया कि मैंने बेसिकली जस्ट मैं आया ग्रॉक API पे, लाइक इट इज़ अ वेबसाइट जहाँ से मैंने जस्ट सिंपल इसे साइन इन किया एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द API कीज, I just need to click on the API key and I can just set the API key as just suppose as trial and I can just set as no expiration or I can set any time limit which I wanted. Okay, so once I click on the submit, I will get a new API and same API में कॉपी करके पेस्ट करूंगा मेरे इस कोड के अंदर. सो ये कोड बेसिकली क्या है? सो इफ यू गो ऑन दिस लाइक ऑन द गूगल एंड इफ यू टाइप समथिंग अबाउट LangChain, right, you will able to see a complete LangChain over here. So LangChain we can say a complete framework where you can able to build the web applications end to end, जहाँ पे आप एक ही framework में you like you are doing everything. I can say the prompts you are writing, like you are working on the RAG, you are working on the like vector databases, you are working on the APIs, the multiple things you can work with the LangChain. So same thing जो LangChain का structure है हम वही use करने वाले हैं. So as we working on the LangChain, so first of all we imported some libraries and models from the LangChain. So the best thing of the LangChain is about कि आपको यहाँ पे सिर्फ अगर आपको कुछ कोड चेंज करना है और सपोज आपको अगर कोई API चेंज करना है, आपको बस यहाँ से उस API का मॉडल चेंज करना पड़ेगा. लाइक आपको उस API का मॉडल चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ चैट ग्रॉक, आई विल राइट अ चैट ग्रॉक. और सपोज इफ आई एम गोइंग टू यूजिंग लाइक सपोज इफ आई वांट टू यूज OpenAI, like OpenAI का API की, आई जस्ट नीड टू एंटर लाइक OpenAI, लाइक वी कैन से लाइक उसका जो भी लाइक कमांड होगा, वी कैन से अ कोड, I will enter here and I will enter the API key for that. So it is completely easy. आपको बस 3-4 लाइन से चेंज करनी, जैसे कि आपको लाइक आपको जो मॉडल नेम है आपको वो चेंज करना पड़ेगा एंड नीड टू चेंज द मॉडल नेम टू. जैसे कि अभी जैसे कि हम ग्रॉक में है, अभी ग्रॉक के अंदर हमारे पास llama 3.1 एक मॉडल है. अगर हम जाते हैं लाइक इनटू द OpenAI, सो वहाँ पे OpenAI के मॉडल्स हमें मिल जाएंगे. राइट, वी कैन सी अ GPT मॉडल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी हमने क्या किया, ये काफ़ी सिंपलेस्ट कोड है जहाँ पे हमने क्या किया, वी जस्ट इम्पोर्टेड वी कैन से अ चैट ग्रॉक एंड बाद में हमने एक ह्यूमन मैसेज और हमने लिखा है सिस्टम मैसेज. सो लेट्स सी व्हाट आर दोस एंड हाउ इट वर्क इनटू द LangChain. So I'm not going to use UI like a ChatGPT or Claude or Copilot. So I'm directly using, we can say, my own setup where I use the API key directly and writing my own code. Okay, so here what I did, so first I created my model, like I just set my complete setup where I just set the chat grok, right, because अभी हम chat grok का ही API यूज करने वाले हैं, करेक्ट. एंड यहाँ पे हमने जो मॉडल लिया है वो मॉडल लिया है chat grok के लाइक अंदर की जो भी मतलब मॉडल सेव है, हम वहाँ से एक मॉडल को हम कॉल करने वाले और यहाँ पे हमने ग्रॉक API का हमने की एंटर किया है. सो विच इज वी कैन से अ वेरिएबल, राइट. सो जो कि हमने ऊपर सेट किया था, जहाँ पे लाइक जो मुझे API मिला था मैंने वो ही यहाँ पे एंटर किया है. सो जब आप ट्राई करोगे आपको भी सेम API जो हमने लिया था इस वेबसाइट से फ्रॉम दिस API की आपको यहाँ से कॉपी करके आपको पेस्ट करना हुआ यहाँ पे एंड जस्ट नीड टू एंटर द कोड, इट विल वर्क. सो हमने इसे रन किया, राइट. अभी जो फर्स्ट थिंग था जो था हमारा बैड प्रॉम्प्ट, सो उसके अंदर क्या था, व्हाट वाज देयर. सो इफ यू सी द कोड, मतलब जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है, इट इज कंप्लीटली सिंपलर, लाइक जैसे कि माय कोड इज नॉट वर्किंग, कैन यू फिक्स इट. और हमने यहाँ पे एक
फंक्शन दिया है जहाँ पे हम नंबर्स को इनपुट कर रहे हैं, और इसका मेन जो वर्क है इट इज़ ऑन द एवरेज ऑनली, राइट। एंड यहाँ पे इट इज़ फिनिश, मतलब हमने बोला कि माई कोड इज़ नॉट वर्किंग, कैन यू फिक्स इट, एंड वी जस्ट गिवन द होल कोड। एंड हमने बाद में यूज़ किया है रिस्पॉन्स इक्वल टू LLM डॉट इनवोक, और हमने यहाँ पे दिया ह्यूमन मैसेज, मतलब जो मैसेज है लाइक इट इज़ गिवन बाय द यूज़र, मतलब वो हम मैसेज इनपुट कर रहे हैं। सो इनटू द लैंग्वेज whenever a user is passing any message it goes with the human message, और हमने यहाँ पे जो कंटेंट है मतलब क्या यूजर कह रहा है, मतलब हम क्या कह रहे हैं, सो वो हमने डाला यहाँ पे बैड प्रॉम्प्ट। सो इफ यू सी जो हमने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है वो स्टोर हुआ है हमारे बैड प्रॉम्प्ट के अंदर, और जब मुझे इसे जब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, सो ये प्रॉम्प्ट पास होगा हमारे LLM के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमने कंप्लीट जो हमारा मॉडल सेव किया है विच इज़ द लामा वी कैन से 3.1, जो कि हमारा LLM नाम से सेव किया था। सो यहाँ पे हम यूज करें LLM डॉट इनवोक, और हम यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट एंटर कर रहे हैं, राइट। इफ यूज मतलब जब भी हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, सो हम चैट जीपीटी के वी कैन से इनटू द टेक्स्ट यूआई वी एंटर द मैसेज एंड जस्ट हिट द एंटर। सेम थिंग यहाँ पे हम जो मैसेज है मैसेज हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और एंटर का मीनिंग वी जस्ट नीड टू एंटर ओवर हियर, राइट। सो वंस वी रन दिस कमांड उसके बाद मैंने बोला है प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे व्हाई वी डिड द रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, बट लेट्स सी व्हेन आई रन इट आई गेट माई आउटपुट। अभी जो आउटपुट मिला है वी कैन से अ टेक्स्ट बुक स्टाइल, इट इज जस्ट अ नॉर्मल, जैसे कि मतलब आपने किसी बोला कि मेरा कोड वर्क नहीं कर रहा है, वो जस्ट आपको बता रहा है जस्ट इनटू द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, मतलब नथिंग इज देयर, नथिंग मच वी कैन से एडिशनल और टिप्स, और वी कैन से टिप्स, एंड ही डजंट नो अबाउट दिस कंप्लीट कोड कि मतलब आप कहाँ पे यूज करने वाले थे और उसे किस टाइप में आपको रिस्पॉन्स देना है। सो वी कैन से इट इज अ कंप्लीट सिंपलर कोड, इवन वी कैन से अ सिंपलर आउटपुट, बट if we learning something we feel we get a complete understanding in one shot, right? So we can say इसके जगह पे अगर हमने यूज किया इस टाइप का प्रॉम्प्ट जहाँ पे हमने लिखा है यू आर अ पाइथन डिबगिंग एक्सपर्ट, आई हैव अ बग इन माई पाइथन, I have a bug in my Python function. Here is the code, and here I just set the function def calculate average, and the same code we have written here. And here problem, when I run calculate average 10 20 30, it always returns 30 instead of 20. Please identify, we can say identify the exact bug and explain why it happens. Show the corrected code and explain in simple terms so beginner understands. So what happened? सो फर्स्ट टाइम जब हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था हमारे LLM को, ही हैज गिवन द आउटपुट, इट इज फैंटास्टिक। वो तब अच्छा लगेगा, मतलब इट विल बी फाइन दैट टाइम व्हेन यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट कोड हाउ इट वर्क, एंड यू जस्ट लुकिंग फॉर अ स्मॉल थिंग दैट कैन मीन्स दैट कैन यू कैन चेंज। But if you are working on a completely new topic and you are not aware how to solve that queries, and you are and you don't have a complete idea on that subject, something like that, so on that time if you provide a complete input, we can say complete prompt, so you will get a output which can be very well defined. If I just make it run, right, and again you can see here, so we got a complete output here, so bug identification and explanation, and here we got the complete output. Even यहाँ पे लिखा है explanation for beginners. Imagine you have a piggy bank where you you are collecting coins. So it provided a best example which he have. Okay, so what it mean by the bad prompt and the good prompt. So in the bad prompt कि आप just एक basic सा एक इनपुट कर रहे हैं जहाँ पे आपने उतना कंटेक्स्ट नहीं बताया है आपके मॉडल को। इट इज सेम मतलब सपोज एक कंपनी में एक इंटर्न हायर हुआ है और उसका जो मैनेजर है हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग हिम, सपोज इफ ही जस्ट से जस्ट डू योर वर्क, सो ही विल जस्ट गेट कंफ्यूज कि उसे कैसे काम करना है, एंड ही जस्ट ट्राई टू वर्क व्हाट वर्क ही वाज असाइंड अर्लियर, एंड ही विल नॉट मच कॉन्फिडेंट। बट if the manager goes there and if he given his today's task, if he says that if he say that just write an email to the client where we are delay for this project for just 2 or 3 days, and just write good humble email and let them know that we are working hard and it can be delivered within 2 to 3 days. So on that time that intern will be easily able to handle the situation and able to see all the documents and just try to see and just try to write the best email to that client, and even he will do the other works which are assigned by the manager. So what is the thing here? So manager needs to assign the complete things what he wanted to do on the day.
right? If the manager is not clearly explained to that person, he will not able to work. Same thing here, when we calling any model, when we given any prompt to any LLM, so on that time we should explain the complete context to the model. So on that time he will able to respond into the detailed manner, राइट. सो हियर वन थिंग इज कम इन माइंड. सो अभी सबसे मेन पॉइंट है जो कि एक फॉर्मूला है फॉर द प्रॉम्प्ट्स. वो फॉर्मूला क्या है? वो बेसिकली है RTF. आर मतलब वी कैन से रोल, मतलब आपको मॉडल को क्या बताना है कि आप क्या हो, राइट. लाइक इफ यू सी, जब हमने एक गुड प्रॉम्प्ट लिखा था यहाँ पे, वी सेड यू आर अ पाइथन डिबगिंग एक्सपर्ट, करेक्ट. सपोज आपने एक सपोज आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया है, राइट, जहाँ पे आप बना रहे हो कुछ रेसिपीज. मतलब आपका जो पूरा जो एप्लीकेशन है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रेसिपी. मतलब एक यूजर आएगा, ही विल टाइप समथिंग अबाउट द डिशेस, सपोज एनी इंग्रेडिएंट्स, एंड ही विल से गिव मी रेसिपी फ्रॉम दिस इंग्रेडिएंट्स. सो ऑन दैट टाइम if you set your LLM in that way, matlab he is a cook. If I say you are a cook from the past 10 years and you have expertise in the veg or non-veg foods, okay, so on that time the way of response which given by the LLM, it will be same, and same sounds like a cook who have experience of 10 years, right. And then we have the next after R, which is T. T means we can say task, कि हमने उन्हें क्या टास्क देना है. सो व्हाट टास्क वी नीड टू असाइन टू दैट एलएलएम. जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है कि आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, लाइक आई हैव अ बग इन माय पाइथन फंक्शन, हियर इज द कोड. सो डेफ calculate average, and I just given the whole, we can say, like code, and when I run calculate average 10 20 30, it always returns 30 instead of 20. Okay, and then we have the F, right. F means we can say format, which is like identify the exact bug and explain why it happens, show the corrected code and explain in this like terms so beginner understand. So आपने यहाँ पे RTF फॉर्मूला यूज किया है, जिसकी मदद से आपने उसे वी कैन से आपने LLM को एक रोल दिया है कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है. ओके, वी कैन से हमने उसे टास्क दिया है विच इज हियर, जो कि हमारा एक मेन क्वेरी है, और बाद में हमने उसे एक फॉर्मेट दिया कि हमें किस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है. अगर हमने तीन चीज़ें प्रॉपरली बोल दिया हमारे मतलब मॉडल को, डेफिनेटली यू आर गेटिंग द फैंटास्टिक आउटपुट एंड विच विल बी हेल्पिंग यू टू लर्न एनी न्यू टॉपिक इजीली. अगर आपको कुछ टॉपिक पहले से पता है एंड इफ यू लुकिंग जस्ट फॉर जस्ट अ क्विक एक्सप्लेनेशन, सो ऑन दैट टाइम दैट बैड प्रॉम्प्ट कैन यू वर्क वेरी वेल, बिकॉज आपको उस टॉपिक के बारे में पहले से पता है. बट इफ यू आर गेटिंग टू कंफ्यूज्ड एंड आपको कुछ मतलब उतना आइडिया नहीं है कि वो टॉपिक को कैसे मतलब क्लियर करें और हाउ टू like make good understanding in that, so on that situation every time the good prompt works very well. So अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक फ्री API जहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है. I can use multiple times, but on that time if you're using suppose a paid APIs, on that time you are spending like we can say credits on the like we can say tokens. मतलब जब भी आप एक response share करते हो, on that time some we can say some charges get deducted from your like API की. So मतलब जो paid होते हैं. So on that time अगर आपने ठीक से प्रॉम्प्ट लिखा नहीं, सो आपने खामखा मल्टीपल टाइम्स आपने प्रॉम्प्ट लिखे, आपने काफी क्रेडिट वेस्ट कर सकते हो, मतलब किए होंगे, मतलब हो सकता है ऐसा, राइट. सो इस जगह पे व्हेन वी आर यूजिंग अ गुड प्रॉम्प्ट, इट इज ऑलवेज वी कैन से एक्सपेक्टेड, वी आर गेटिंग अ गुड आउटपुट. सो अभी क्या हुआ कि अभी हमें जो आउटपुट मिलेगा, इट इज प्रोवाइडिंग वी कैन से विथ लाइक विथ अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी विच यू कैन रिलेट, राइट. सो इसलिए जब भी आपको कुछ टॉपिक के बारे में उतना आइडिया नहीं है, सो ऑन दैट टाइम इफ यू यूजिंग अ गुड प्रॉम्प्ट जहाँ पे आपने RTF फॉर्मूला यूज किया है, जो कि रोल, task and format है, so on that time for sure you are getting a best explanation from the LLM. So that's from today's video, and just try out this technique whenever you are going to work on any new topic जो कि आपको समझना है. So on that time just try to use RTF and see how beautifully you will get the response from the LLM. In the next video we are going to see more about the prompts with using the LangChain. I try to make the complete like a series on the LangChain, जहाँ पे हम LangChain यूज करके मल्टीपल Gen AI के टॉपिक्स को कवर करेंगे one by one. So thank you for watching this video, and we will get back in the next video. Till the time, keep learning. Bye bye.